Hello students. So today we are going to start lecture number 2 of group 16, that is the oxygen family. In lecture number 1 we discuss about the physical properties up to electron gain enthalpy. So next property of group 16 elements is electronegativity. As you know that electronegativity is tendency of element to attract the shared pair of electron in the bonded form, and it depends upon size and the nuclear charge. So electronegativity of group 16 elements are higher compared to elements of group 15. For example, अगर हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन, then your oxygen will be having higher electronegativity compared to nitrogen, whereas your sulfur will be having higher electronegativity compared to your phosphorus. Why it is so? Reason being, now we have moved one place to the right in the periodic table, so your atomic size has decreased and the nuclear charge has increased. इसका atomic number 7 था, इसका atomic number 8 हो गया. So there is more nuclear charge in the nucleus of the oxygen compared to nitrogen, as well as oxygen is also having the smaller size compared to nitrogen, so the electronegativity will increase. On going down the group, in oxygen to sulfur, selenium, tellurium, polonium, likewise your electronegativity will decrease. So your electronegativity will decrease, and the reason for this decrease in electronegativity is increasing size of these elements. As we go down the group, the size of the elements will increase, so their tendency to attract the shared pair of electron will increase, and that will also decrease. That is, the electronegativity will decrease on going down the group. So this is the next property. Now after electronegativity, the next property which we have to discuss is catenation. Next property is catenation. Catenation, as you all know, it is the property of self linking of element. जब एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन. एंड टेंडेंसी टू कैटिनेट, आई हैव ऑल्सो टोल्ड इट इन योर group number 15 while we discussed the nitrogen family, that the catenation, tendency to catenate, that depend upon the element single bond strength. सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, हाउ मच स्ट्रॉन्ग ए सिंगल बॉन्ड इज बिटवीन द टू एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, दैट डिसाइड्स हाउ मच कैटिनेशन विल बी देयर. सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O3 मॉलिक्यूल, बट बिकॉज ऑक्सीजन single bond is not that strong, so the tendency to catenate in oxygen is small compared to sulfur, because sulfur single bond is stronger than oxygen single bond. So sulfur has the maximum tendency in this group to catenate. As we go down the group in the heavier elements, then the tendency to catenate will also decrease. Why it will decrease? Because the size of the element will increase. As a result of this, the bond length, and hence due to increased bond length, the bond strength will decrease. So tendency to catenate will also decrease. Next property is tendency to form p-pi multiple bond. Tendency to form p-pi multiple bond.
This tendency to form p pi multiple bond then it depends upon the effectiveness of sidewise overlap between the p orbitals, and that in turn depends upon the size. So among the element of group 16, oxygen has maximum tendency to form p pi multiple bond. Why it is so? Because oxygen being smaller in size, that will lead to an effective overlap, p pi sidewise overlap. So it will have the maximum tendency to form multiple bond, and as we go down the group, tendency to form p pi multiple bond will डिक्रीज. ये डिक्रीज करेगी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा. क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि साइज बढ़ने के साथ जब ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है तो इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैप जो है वो कम हो जाता है. एज ए रिजल्ट टेंडेंसी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड आल्सो डिक्रीजेस. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एटोमिसिटी. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, atomicity is what? It is the total number of atoms of element present in a molecule. So in group, among elements of group 16, oxygen exists as diatomic molecule. ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 मॉलिक्यूल, एंड दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अदर मॉलिक्यूल्स, with other molecules, you can say with other molecules, so it will be existing as a gas. So diatomic gaseous element है. Why oxygen is diatomic gaseous molecule? Because of its ability to form p pi multiple bond. p pi multiple bond. ये p pi multiple bond बना सकता है ऑक्सीजन. इसलिए ये क्या करेगा, इसके दो एटम आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, एक सिग्मा और एक पाई. सो एज ए रिजल्ट the octet of both the atoms will get completed, so they will not have any tendency to combine with the other atom. As a result, it will be existing as a diatomic gas. In case of other elements like sulfur etc., because this tendency to form p pi multiple bond is quite less compared to oxygen, so all those elements, they exist as octaatomic molecules. Octaatomic means 8 molecules will be there. So sulfur exists as S8, selenium Se8, tellurium Te8 etc. They will be existing like this, and these molecules have a puckered ring structure. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पक्कड रिंग स्ट्रक्चर होता है. जैसे सल्फर S8 जो सल्फर है, that will be existing in the form of a, you can say, your crown. It will be like this. You will be forming this type of structure. इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बनेगा. ये इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, एंड कुछ लोग इसको वैसे सीधा 8 एटम्स का रिंग भी दिखा देते हैं, बट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. दिस इज ए क्राउन टाइप स्ट्रक्चर. तो सल्फर जो है ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर में बिल्कुल इसी तरीके से सिलीनियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो दिस इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ग्रुप एलिमेंट, दैट इज ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ऑक्सीजन इज डायटोमिक, वेयर एज बाई ऑल अदर एलिमेंट्स दे आर ऑक्टाएटोमिक
in nature. Next property is allotropy. I have already discussed what are allotropes in group number 15. We also discussed there about the various allotropes of group 15 elements. So all elements of group 16, all elements of group 16 exhibit allotropy. सब के सब जो है वो एलोट्रॉपी शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ऑक्सीजन है दैट एग्जिस्ट एज O2 एंड O3 मॉलिक्यूल. दिस इज डाइऑक्सीजन गैस और दिस इज योर ओजोन. सो दे एग्जिस्ट इन बोथ डायटोमिक एंड एज वेल एज ए ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल. जो सल्फर है दैट एग्जिबिट ए नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म. सल्फर exhibit a number of allotropic forms. Number of allotropic forms. और ये जो सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं दे विल बी हैविंग चेन्स, स्ट्रेट चेन्स, लॉन्ग चेन्स, एज वेल एज दे विल बी हैविंग रिंग्स. तो जितने भी हमारे जो एलोट्रॉप्स हैं सल्फर के उनको हम 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहला कहलाता है होमोसाइक्लिक स्पीसीज. होमोसाइक्लिक स्पीसीज. जो अभी मैंने बताई थी आपको पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर. सल्फर एग्जिस्ट एज your rhombic sulfur and monoclinic sulfur, and both of those forms they belong to this category homocyclic species. 8 मेंबर का एक रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होमोसाइक्लिक स्पीसीज के अंदर. तो इस टाइप के जो एग्जांपल है होमोसाइक्लिक स्पीसीज के दे आर योर मोनोक्लिनिक सल्फर एज वेल एज rhombic sulfur. The second type of is chain polymers, or they are also called catenna sulfur. They are also called catenna sulfur. इसके अंदर क्या होता है आपका कैटेना सल्फर के अंदर देर इज चेन्स ऑफ सल्फर एटम्स. इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दैट इज योर प्लास्टिक सल्फर. इट इज प्लास्टिक सल्फर. तो इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दैट इज योर प्लास्टिक सल्फर. And apart from these, the third form is that is unstable molecules. इसके अंदर क्या होता है जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर 2 से लेके 5 मेंबर तक के रिंग बनते हैं. जैसे जो ये होमोसाइक्लिक स्पीसीज थी, होमोसाइक्लिक स्पीसीज के अंदर जो है 6 से 20 एटम तक का 6 to 20 एटम्स तक का रिंग बनता है. एंड दीज रिंग्स आर क्वाइट स्टेबल बट देयर इज अनस्टेबल फॉर्म आल्सो. तो जो ये अनस्टेबल आपकी फॉर्म है मॉलिक्यूल्स है अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स दे हैव ए स्ट्रक्चर फ्रॉम योर अप टू 5 एटम्स. यू कैन से अप टू 5 एटम्स इन्वॉल्व इन दिस एंड दे आर क्वाइट अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स. अगर हम टेम्परेचर 1000 केल्विन या इससे ऊपर रखेंगे अबव दिस टेम्परेचर देन योर सल्फर विल बी existing like your oxygen molecule that is S2 डायटोमिक सल्फर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी एंड इट विल आल्सो बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर. जैसे डाइऑक्सीजन आपकी पैरामैग्नेटिक होती है वैसे ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है ये 1000 केल्विन से ऊपर एग्जिस्ट करता है, क्वाइट अनस्टेबल है एंड इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो दिस इज अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर. जो हमारे बाकी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे सिलीनियम है वो आपका ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें अल्फा क्यूबिक फॉर्म है, बीटा आपकी रोम्बोहिड्रल फॉर्म है, ठीक है, और पोलोनियम जो है वो मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो दीज आर द एलोट्रॉप्स. बेसिकली इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं दे आर ऑफ
सल्फर। तो आपने वो ध्यान रखना है कि सल्फर जो है वो मैक्सिमम एलोट्रॉपी शो करता है। नाउ नेक्स्ट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। इसमें जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हमारे जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं दे कंबाइन directly or indirectly with hydrogen to form their hydrides. For example, if we pass an electric spark through a mixture of hydrogen and oxygen, we will be getting water as a product. Similarly, if we allow hydrogen gas to react with sulfur, it will give you H2S gas. Now let us talk about the properties of these hydrides. Properties of hydrides. So first property is physical state. First property is your physical state. Except water, which is a liquid, all other hydrides of group 16 are poisonous गैसेस। वाटर को छोड़ के जो कि हमारा लिक्विड है, बाकी जितनी भी हमारी हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 16 के, वो सब के सब आपके क्या हैं? पॉइजनस गैसेस हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज योर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट को हम डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग ओनली द बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जितने भी हमारे हाइड्राइड्स हैं दे आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, दे आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन देम, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between molecules are van der Waals forces, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है? van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और आपको ये 11th में बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था कि जो van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब नीचे जाने पे क्योंकि हमारा साइज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट बढ़ रहा है, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा, सो योर van der Waals फोर्सेज विल आल्सो इंक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि नीचे जाने पे क्योंकि van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। एंड वाटर विल हैव highest boiling point, exceptionally it will have the highest boiling point among the hydrides of group 16. and why वाटर का ज़्यादा क्यों है, हाईएस्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
वाटर के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर। आपको 11th में भी बताया था, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 थ्रू द हाइड्रोजन एटम एंड ये 2 हाइड्रोजन से और 2 ही आपके ऑक्सीजन से बनेंगे। यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन आएंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। The third property of hydrides of group 16 is thermal stability, that is stability to heat, thermal stability। जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की of group 16 elements, that decreases on going down the group from oxygen to लिवरमोरियम या पोलोनियम भी लिख सकते हैं। अभी तक लिवरमोरियम बुक्स में कुछ में ऐड नहीं हुआ है। तो ये डिक्रीज करेगी थर्मल स्टेबिलिटी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ई मैं लिख रहा हूं ग्रुप 16 एलिमेंट को, साइज ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 विल इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। इसका साइज बढ़ेगा। एज ए रिजल्ट बॉन्ड लेंथ between hydrogen and element of group 16 will also increase due to increasing size. Due to increasing size of element, hydrogen element bond length increases. Hence बॉन्ड बिकम वीक। आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो जब आप इसको हीट देंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। सो अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 वाटर इज द मोस्ट स्टेबल एंड H2PO इज द लीस्ट स्टेबल। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज रिड्यूसिंग करेक्टर। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 16 के, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ये रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में। और आपको ग्रुप 15 में बताया था मैंने आपको, जब नाइट्रोजन के फैमिली का हाइड्राइड डिस्कस किए थे, कि हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग करेक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन द थर्मल स्टेबिलिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। दैट इज more the stability, less is the reducing character. Less the stability, more is the reducing character. It means जो reducing character of hydrides of group 16 है, that will increase on going down the group from water to your polonium। तो इनकी जो है बढ़ती चली जाएगी reducing power। This is the fourth property. The fifth property of these hydrides of group 16 is acidic character. Acidic character except water which is neutral, all other hydrides of group 16, all other hydrides of group 16 are acidic in nature, ये सब के सब एसिडिक होते हैं नेचर में। दे अंडरगो डिसोसिएशन in 2 steps. I will be showing the dissociation of these with the help of dissociation of H2S. H2S है, in the first step it will dissociate to give H plus hydrosulfide ion HS minus.
then this HS minus will dissociate to give H plus plus S2 minus, that is sulfide ion. So whenever these hydrides will react with some base, they will be forming two types of salt. For example, अगर H2S NaOH के साथ रिएक्ट करें और 1:1 में रिएक्ट कराएं हम इसको, तो NaSH प्लस H2 बनेगा. दिस विल बी कॉल्ड सोडियम हाइड्रोसल्फाइड. और अगर आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH की रिएक्शन करवाएं H2S के साथ, यू विल गेट सोडियम सल्फाइड प्लस 2H2O. So 2 series of salt will be formed, that is hydrosulfide and the sulfide. Now if we discuss the acidic character, what happens to acidic character of these hydrides on going down the group, then we will find that H2S is less acidic than H2TE, it is less acidic than H2SC, and it is less acidic than H2TE. नीचे जाने पे आपका एसिडिक करेक्टर बढ़ता है. आप इसको इस चीज़ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नीचे जाएंगे तो एलिमेंट का साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो डिसोसिएशन विल बिकम ईजियर. या हम इनको ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो ये कॉन्जुगेट बेस बनेंगे, दीज सल्फाइड आयन, सिलेनाइड आयन, टेलराइड आयन, ये जो कॉन्जुगेट बेस हैं, they will be weak base, conjugate base, they are weak bases. इनका जो बेसिक करेक्टर है वो क्या है? दिस इज मोर बेसिक देन दिस, दिस इज मोर बेसिक देन दिस. वाई इट इज सो? ड्यू टू डिक्रीजिंग electron density, due to decreasing electron density on going down the group, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे इन आयंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती चली जाती है. व्हाई इट डिक्रीजेस? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग साइज. सभी के ऊपर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, बट टेल्यूरियम इज मच लार्जर इन साइज कंपेयर टू सल्फर. So the electron density will be less in case of tellurium, so it will be a much weaker base than sulfide ion, so its acid will be stronger than the other two. So this is the acidic character of hydrides of group 16. You can also have an idea about their acidic strength if we go by the dissociation constant of these acids. इनके जो dissociation constant है, H2S का है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, दैट इज 1.3 इंटू 10 की पावर -7. H2SC इसका K है 1.3 इंटू 10 की पावर -4. और जो H2TE है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 2.3 इंटू 10 की पावर -3. सो आपको पता है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना कम होगा वो उतना ही वीक एसिड होगा. सो दिस इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, सो इट इज वीकेस्ट एसिड. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है इसको. सो द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस. रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, formation of halides. Formation of halides. Group 16 element also combine with halogens to form binary compound which are called halides. But remember one thing, that compound of oxygen with halogens other than fluorine, they are called oxide rather than halide. ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है फ्लोरीन के साथ O2F2 बनाती है
और OF2, 2 कंपाउंड बनाती है फ्लोरीन के साथ। इन दोनों में आपकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 है रिस्पेक्टिवली, बिकॉज योर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो दीज आर कॉल्ड फ्लोराइड्स। इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोराइड्स कहते हैं। बाकी जितने भी हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। वो सब के सब जो है वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सो दे विल बी कॉल्ड ऑक्साइड्स रेदर देन हैलाइड्स। अगर हम सल्फर की बात करें कि सल्फर कौन कौन से हैलाइड बनाएगी, तो अगर फ्लोराइड्स की बात करें तो सल्फर फ्लोराइड्स में आपका मोनोफ्लोराइड बनाती है विद फार्मूला S2F2, इट फॉर्म डाईफ्लोराइड SF2, इट फॉर्म टेट्राफ्लोराइड SF4, इट फॉर्म हेक्साफ्लोराइड SF6 and it also form S4F10. So these are the compounds with fluorine, that is fluoride, sulfur fluorides. अगर हम क्लोराइड्स की बात करें तो सल्फर फॉर्म मोनोक्लोराइड S2Cl2, इट फॉर्म टेट्राक्लोराइड SCl4। ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे आपका हैलोजन का साइज बढ़ता चला जाएगा तो इधर से आपके कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो भी कम होती चली जाएगी, बिकॉज व्हाट हैपन्स इन दैट केस इज दिस सल्फर मॉलिक्यूल विल सल्फर एटम विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ लार्जर साइज मॉलिक्यूल या एटम, सॉरी लार्जर साइज एटम ऑफ हैलोजेंस। ये साइज बढ़ गया, जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया, सो नेचुरल सी बात है आपकी जो है SCl6 नहीं बनेगा। एक ये डाईक्लोराइड और बनाती है SCl2। सो दीज आर द कंपाउंड्स विद क्लोरीन। अगर हम ब्रोमाइड में जाएंगे तो ब्रोमाइड के साथ ये S2Br2 बनाती है और SBr2 बनाती है, ये टेट्रा ब्रोमाइड भी नहीं बनाती। और अगर हम आयोडाइड में जाएं देन इट फॉर्म ओनली मोनो आयोडाइड S2I2। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे आपका हैलोजन का साइज बढ़ेगा, दिस सल्फर एटम विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू अकोमोडेट ऑल दोज लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स अराउंड इट। उनके बीच में इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी एंड दैट विल मेक द कंपाउंड अनस्टेबल। इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स के भी आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से हैलाइड्स बनेंगे। मोस्टली जो हैं वो, अगर हम जो किताब के हिसाब से चलें तो भाई ये किस तरीके से कितने कंपाउंड डिस्कस करने हैं, तो इसमें जो 2 ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस किए हुए हैं हैलाइड्स के। वैसे तो अब बहुत कुछ पार्ट जो है हमारा ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक, बहुत सा पार्ट जो है कंपाउंड्स के केस में कट चुका है। तो हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।